Hello friends, we'll start with 1.5 now. The first one is you have to classify the following numbers as rational or irrational. So the first sum is 2 minus root 5. You have to classify this as rational or irrational. Now we know that 2 is a rational number. It is a whole number and it is a rational number. You can write it in the form of ratio 2/1 हम लोग लिख सकते हैं. लेकिन root 5 का क्या केस है? root 5 we cannot write in the form of a/b. Upon 1 we cannot write. So this root 5 part is an irrational number. So this whole number becomes irrational number. Now since you can write the reason, since root 5 is an irrational number, therefore 2 minus root 5 is an irrational number. And the second is 3 plus root 23 minus root 23. Now before writing whether it is a rational or irrational number, we are going to solve this part first. देखते ही नहीं करना है, फर्स्ट हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं तो कर लेने का. Now we will open this bracket. ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या मिलेगा? 3 plus root 23 minus root 23. Now here it is plus root 23 और minus root 23, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं. And we are going to get the answer as 3. और ये 3 क्या है? रैशनल नंबर. So this number is a rational number. क्योंकि सॉल्व करने के बाद हमारे पास नंबर बचता है 3 and 3 is a rational number. So this whole number becomes a rational number. Third is 2 root 7 upon 7 root 7. अब ये रूट आ गया तो देखते ही सॉल्व नहीं करना, कि देखते एक्सपेक्ट नहीं करना. इट इज़ अ इरैशनल नंबर. फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व वॉट एवर इट इज़. अब यहाँ केस में 2 root 7 है और 7 root 7 है. सो इन दिस केस root 7 एंड root 7 गेट कैंसल्ड आउट और हमारा आंसर बचता है 2/7. एंड 2/7 इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q और ये इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो. देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर. Next is 1 by root 2. Now we know that 1 is a rational number, लेकिन root 2 तो irrational number है. Therefore this whole number becomes irrational. It is an irrational number. And the reason you can write, since root 2 is an irrational number. Since root 2 is irrational, the whole number becomes 1 by root 2 is irrational number. Then the next is 2 pi. अब ये जो pi है, pi की वैल्यू itself is an irrational number. Pi is always an irrational number क्योंकि इसकी कोई perfect value नहीं है. So this whole number becomes irrational because pi is an irrational number. So this was the first part of 1.5. We'll go for the next part. Next is you have to simplify. Second part. First sum is 3 plus root 3 and 2 plus root 2. Now how we are going to simplify this? Now this is the second part of 1.3. You have to simplify the following expression. First sum is 3 plus root 3 और 2 plus root 2. अब इसको simplify करने का क्या method है? You will take this example. a plus b और c plus d. a plus b into c plus d. तो जब भी ऐसे numbers आते हैं दो brackets में और एक एक bracket में दो दो number रहते हैं, तो ये first number को इन दोनों से multiply करना होता है. And after that ये sign डाल के फिर ये नंबर को पहले इससे और फिर इससे. तो रिमेंबर दिस मेथड. ए को पहले इससे और इसके सेकेंड ब्रैकेट के फर्स्ट नंबर से और सेकेंड ब्रैकेट के सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई करना है. फिर ये साइन डाल के ये नंबर को फर्स्ट डिजिट एंड देन विद दिस डिजिट. इफ़ यू रिमेंबर दिस मेथड
तो इस सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले हम लोग ये 3 लेंगे एंड यू विल राइट दिस होल ब्रैकेट। अगर ऐसे नहीं जम रहा है तो 3 इंटू ये ब्रैकेट लिखना 2 + √2, फिर ये साइन डाल के √3 इंटू 2 + √2। If you cannot do it directly, you can write a into c plus d plus b into c plus d। फर्स्ट डिजिट को सेकेंड ब्रैकेट के साथ प्लस सेकेंड डिजिट को सेकेंड ब्रैकेट के साथ। तो दिस इज़ द मेथड ऑफ ओपनिंग द ब्रैकेट्स। तो 3 इंटू 2 + √2 प्लस √3 इंटू 2 + √2। अब इसको ओपन करना है। 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इज़ 6 प्लस 3 इंटू √2 इज़, यू विल राइट एज इट इज़ 3 √2 लिखेंगे, फिर प्लस √3 इंटू 2 सेम है 2 इंटू √3 या 3 इंटू 2 √3, सो विल राइट 2 √3 प्लस √3 इंटू √2। जब भी दो रूट मल्टीप्लाई होते हैं उसके अंदर के नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं और स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहता है। तो 3 2 ज़ा 6, तो √3 इंटू √2 हम लोग को आंसर मिलता है √6। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो और सॉल्व नहीं होगा। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, क्योंकि नंबर्स को हम लोग कुछ ऐड नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे √2 है, √3 है, सो वी कैन नॉट ऐड दिस 2 नंबर्स। और ये 6 और √6 को भी ऐड नहीं कर सकते, ये √ है। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, यू कैन नॉट डू एनीथिंग फर्दर। सेकेंड सम, 3 + √3 इंटू 3 माइनस √3। अब ये किस फॉर्मेट में है? दिस इज़ ऑफ द फॉर्मेट a + b इंटू a - b। बोथ द नंबर्स आर सेम, a भी सेम है और b भी सेम है और साइंस चेंज है खाली, a + b इंटू a - b। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है a² - b²। सो विल यूज़ दिस फॉर्मूला ओवर हियर। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते a² - b², दैट इज़ a हमारा 3 है प्लस b क्या है, सॉरी माइनस आएगा, माइनस b हमारा √3 है, √3 द होल स्क्वायर। तो a² - b², 3 3 इज़ 9 माइनस √3 इंटू √3 कितना होता है, स्क्वायर रूट हट जाता है। दो रूट को एक ही बार, दो रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाता है। √3 इंटू √3 बिकम्स 3। सो 9 - 3 इज़ 6, योर आंसर इज़ 6। थर्ड सम इज √5 प्लस √2 द होल स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्म है? दिस इज ऑफ द फॉर्म a + b द होल स्क्वायर। एवरीवेयर यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज जो भी है, a + b इंटू a - b, a + b द होल स्क्वायर। a + b द होल स्क्वायर का ओपन करने का क्या फॉर्मूला है? a² प्लस 2ab प्लस b²। दिस इज़ द मेथड ऑफ ओपनिंग a + b द होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। a² इज़ व्हाट? a हमारा √5 है, तो विल राइट √5 द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, यानी कि 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस b², b हमारा √2 है, तो √2 द होल स्क्वायर। √5 इंटू √5 इज़ व्हाट? स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये आंसर बचेगा 5। √5 इंटू √5 इज़ 5 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √10, स्क्वायर रूट के अंदर रहा तो नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा। तो स्क्वायर रूट 5 2 इज़ 10, 2 √10 प्लस √2 इंटू √2 इज़ अगेन 2, रूट हट जाएगा, 2 इंटू 2 2 बचेगा खाली, √2 इंटू √2 इज़ 2। अब ये 5 और ये 2 को हम लोग ऐड कर सकते हैं। सो द आंसर विल बी 7 प्लस 2 √10। अब ये 7 और ये 2 को हम लोग ऐड नहीं कर सकते क्योंकि 2 के साथ यहाँ पे √10 है, ये ओनली नंबर है, लेकिन यहाँ पे नंबर के साथ स्क्वायर रूट है। सो वी कैन नॉट ऐड दिस 2 नंबर्स, तो ये ऐसे ही रहेगा। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, 7 प्लस 2 √10। द फोर्थ वन इज √5 minus √2 एंड √5 प्लस √2। अगेन यहाँ पे a भी सेम है, b भी सेम है, तो दिस इज अगेन ऑफ द टाइप
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका डायरेक्ट आंसर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो इन द सेम वे विल राइट दिस ओवर हियर. ए हमारा √5 है, √5 द होल स्क्वायर माइनस √2 द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब √5 इंटू √5 इज़ 5 माइनस √2 इंटू √2 इज़ 2. तो 5 minus 2 आंसर इज 3. So this was the second part of 1.5.